She's bold, real, and full of soul. From theatre to TV to films, like super boys of Maliga, Manjiri Pupala brings something honest to every role. Today on BU with Shraddha S, we have Manjiri Pupala. So Manjiri, everybody is talking about Manjiri Matching Center. हमें प्लीज बताइए ये क्या है और क्यों इतना सब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. सो प्लीज हमें इसके बारे में बताइए. First, I want to ask you a question. Do you know why you're named what you're named? So my parents this said because उनकी भगवान पे बहुत श्रद्धा थी. So the first child, I mean the first born, तो Yeah. उन्होंने सोचा कि इसका नाम भी श्रद्धा रखें. Wow. It is Wow. like that. So, like every fingerprint is different. All Right. of us have different fingerprints. Right. Similarly, all of us have a peculiar story attached to our name, Hmm. right? So, Manjari Matching Center is actually the story of why I'm named what I'm named. Okay. But the story is not just that, it is Hmm. exploring like a father daughter relationship अच्छा. and different relationships in that context. So, uh, it's a very personal piece which is fictionalized and it's dedicated to my father, really. And it's not a very diabetically, you know, when I say dedicated, it's not that I'm praising him all the time. It Yeah. it touches upon certain really difficult and certain really tough topics which probably you don't get to discuss, but I think art heals, art kind of gives you that freedom. So the play actually gave me the freedom to talk about those things and discuss. And funnily, it's beautiful how people are receiving it. Like there are so many women specifically, and also men, but more specifically women coming to me and telling me about their incidences and their life. How they can relate. Yeah, how they can and I never thought. I thought it's my story. Oh. I've been working on it for about a couple of years now, writing it, and finally I decided to open it on 13th of May, and I was really amazed. So I've heard some reviews and I'm so looking forward to Please come watch it, please, please. and watch 14 the June, show. I'm performing, and now I'm going to be, performing it recurringly. Okay. And I want to experiment with this play where I want to take it to different art galleries, different museums, because I think theater or storytelling is very, very, it's very basic to human evolution. Right, right, So right. I feel whatever happens in my life, I can never ever leave this art form. That's like me going back home. Right. So I feel Manjari Matching Center became my just way back home after 5 years of staying away from theater. And it really made me miss it so badly that I worked at it and I said, I want to deserve this way back home. So How yeah. nice, how nice. So मंजरी हमें प्लीज बताइए कि आपको कब रियलाइज हुआ दैट एक्टिंग इज समथिंग यू रियली वांट टू डू और आपने कैसे सोचा और कैसे आपका पहला स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग रहा. मेरा पहला स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग बहुत ही फनी था. मेरे स्कूल के एनुअल डे में मुझे कास्ट किया गया था और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे दादाजी का कैरेक्टर मिला. And I hated that I character. can imagine. I can imagine. I Being a hate- girl playing an old man's Yeah. role मतलब नहीं. मुझे तो सिंड्रेला बनना है वाला Exactly, attitude होता है right? सबका. And honestly, that wasn't my problem. My problem was that I didn't want to be on the stage. Oh, okay. I was an introvert, very, very shy as a child, had a lot of complexes about my own personality. And suddenly this happens and I hated it. And I promised myself that जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं करेंगे. Yeah. And I think they say never. And that's what happened. And apparently it turned out to be this. But, my father used to love theater. Okay. इतना कि उन्होंने ना अपनी शादी में एक प्लेटफॉर्म बनाया था. अच्छा. उस पे दूल्हा दुल्हन की चेयर्स नहीं थी,
उसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस स्पेस था। Wow. तो वहाँ पे वन एक्ट प्ले परफॉर्म हुआ था बिकॉज ही बिलीव्ड व्हेन ही गॉट मैरिड that he wanted to experiment with opening up marriages and weddings actually as avenues for one act plays because that time like how we didn't they didn't have lot of platforms. Right. तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं मैं अपनी शादी में करूंगा तो 500 लोग आएंगे तो वो देखेंगे वो भी इंस्पायर होंगे। तो उन्हें नाटक के लिए इतना How जेन्युइनली इस आर्ट beautiful. फॉर्म के लिए लगता था। हाँ. इतना कि बाबा को ना एक बार पकड़ लिया था पुलिस ने। हाँ. उनको लगा था बाबा ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। वो कोई नाटक पसंद आ जाए तो वो क्या करते थे कि वो ना बहुत सारी टिकटें खरीदते थे और हमारी कॉलोनी में उनके सबको दोस्तों को बांटते थे. सबको दिखा देते। तो नाटक शुरू होने से पहले वो थिएटर के बाहर खड़े रह के सबको जो आ रहा है उसको टिकटें मतलब दे दे रही देते हैं. थे। तो एक बार पुलिस आगे बोला अरे ब्लैक में बेच रहे हो आप because he had some 50 tickets and a Wow. government servant who was working in like films division as an art director, उनकी सैलरी से वो कुछ पैसे निकाल के इतने लोगों को नाटक दिखाना because he believed कि मराठी नाटक for that matter was a very revolutionary in that time. तो उन्हें ना बहुत विश्वास था इस पे कि आर्ट can bring revolution, art can make you question certain things. तो आज भी मैं जो subjects या जो topics या जो projects चुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है उनमें एक चीज बहुत ही naturally होती है जो मैं सोचती हूँ कि क्या सवाल ये स्टोरी छोड़ के जा रही है किसी Right. व्यूअर के लिए। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मैं जब पढ़ाई कर रही थी मतलब मैं जब ग्रो अप हो रही थी तो कॉलेज में मैंने एक नाटक देखा। तब मैं इंजीनियरिंग की प्रेपरेशन कर रही थी। मुझे बनना था एरोनॉटिकल इंजीनियर। Okay. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। रूपरल कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ रही थी। बहुत बढ़िया सब चल रहा था। एंड सडनली आई हैपन टू वॉच अ प्ले। वो Okay. भी वन एक्ट प्ले था और वीणा जामकर नाम की एक मराठी एक्ट्रेस है बहुत उम्दा एक्टर है। हाँ. तो मैंने उनको देखा परफॉर्म करते हुए। और कौन सा प्ले था वो? वो ना विजय तेंदुलकर का एक नाटक था सावलिया। तो वो इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया था उन्होंने और बचपन से आदत थी नाटक देखने की। देखने. तो मैं कॉलेज में देखने चली गई। कैफेटेरिया में एक वेन्यू था वहां पे मैं देखने चली गई। और ना तब मेरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन चल रही थी। तो किसी ने सोचा ही नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था। और मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर इसलिए बनना था फॉर द थ्रिल ऑफ इट। Right. मुझे क्या लगा कि बहुत मजा आएगा अगर मैं रॉकेट साइंटिस्ट बनूंगी। तभी तभी कल्पना चावला की बात काफी हो रही थी। तो मुझे लगा दिस इज द टाइम, आई एम द नेक्स्ट कल्पना चावला ऑफ इंडिया। यही एडवेंचर है मेरी जिंदगी का। Right. एंड देन आई वाज स्टडीइंग फॉर द एंट्रेंस। और ना अचानक से मैंने वो नाटक देखा और वीणा को देखा और मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गई उसको देख के। नाटक खत्म होने के बाद ना बाबा की आदत थी कि वो हमें बैक स्टेज लेके जाते थे एक्टर्स को मिलने के मिलवाने लिए। के लिए. तो मैं चली गई और वो ना किसी से बात कर रही थी। तो आई जस्ट स्टेप्ड ऑन द स्टेज। और जैसे ही मैंने उस स्टेज पे स्टेप इन किया ना मेरे अंदर इतना ज्यादा एडवेंचर वाला फीलिंग आया। जैसे आप बहुत ऊंची ऐसे जगह पे खड़े हो अगर टॉवर पे और नीचे देखो तो जो पेट में होता है ना वैसा फीलिंग आया। और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे जैसे समझ लीजिए ये रग जो है वो स्टेज है और यहाँ लोग बैठे। सो देयर वाज नथिंग बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक परफॉर्मेंस एनर्जी किस्ड माय सोल इन दैट मोमेंट। Right. और मुझे लगा जो एडवेंचर मैं स्पेस में ढूंढना चाह रही हूँ वो तो मेरे सामने है। एंड दैट वाज इट। लाइक दैट वाज अ Wow. लव एट फर्स्ट साइट एंड Wow. जेन्युइनली अ लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट के जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना जो भी आपको वो सारे मुझे इस करियर ने दिए। But I must say you're lucky enough कि आपको वो butterflies आए जी और बिल्कुल। आपको realize हुआ at a point where you could actually take it up, right? Yes, It's very yes, important. yes. बहुत लोगों को वो नहीं आ पाता है या उनको end तक नहीं पता चलता है कि what exactly I want to do. But I'm glad that आपको वो realize हुआ and then you chose that. I think आई वो थिंक देयर बहुत इज अ जरूरी. साइन। मतलब एक बहुत बेसिक साइन होता है जब आप वो चीज कर रहे होते हो तो एक तरह का ना बहुत ही स्ट्रेंज मेडिटेटिव स्टेट आप एक्सपीरियंस करते हो
तो वो स्ट्रेंजनेस जिस भी चीज के साथ आपको एक्सपीरियंस हो ना, उसको पकड़ लेना चाहिए उसी मोमेंट में। Right. मुझे लगता है वो चीज बहुत प्रेशियस है। और कई लोग, एंड इट्स वेरी टफ, इट्स रियली टफ, चूजिंग इट इज ऑल्सो टफ, बट कैचिंग होल्ड ऑफ इट इज ऑल्सो वेरी टफ। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हम बहुत इजी साउंड करवा देते हैं इस चीज को, पर नहीं है इजी। Mhm. बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ जो लोग नहीं कर पाते हैं, Right. बट You need courage. यू नीड करेज। और मुझे, मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी यूएस यूके में दे वर्किंग एज इंजीनियर्स, दे वर्किंग एज डॉक्टर्स, तो मेरी सारी दोस्त वहां पे हैं। तो उनको देख के ना मुझे कई बार ऐसा लगता है कि काम काम ना लगना इज द लाइफ फोर्स दैट आई लिव अपॉन। True. That you're enjoying your work every Yeah, single day. You look yeah. forward to go on your work. In fact, when I'm not working is work for me. Hmm. You know, when I'm working, it's holiday for me. Right, So right. that's the That's joy. yeah, and that's the way it should be. Otherwise, it becomes a burden. Yes, कि then completely. वो सारे जो phrases आते हैं ना, oh it's Monday again, तो ये सब उसी उसी चक्कर में तो आ रहे हैं कि you are forcing Exactly. yourself upon. और फनीली ना, हम जब छोटे थे तो मेरे बचपन में मेरी बहन और मुझे दोनों को ना कभी हॉलिडे या कभी ऐसा छुट्टियां जो होती है, गर्मियों की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा था। Hmm. क्योंकि जैसे ही स्कूल खत्म होता था हमें इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। तो मेरे लिए, मेरे सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड अ संडे एंड अ सैटरडे बिकॉज मैंने जिंदगी ऐसी जी ही नहीं है, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। Right, right. Like, I never needed a Sunday or a Saturday, How or nice. never felt fearful of a Monday for that matter. So in a way, it's a liberation. Okay. So जैसे आपने बताया कि आप वो प्ले देखने गए एंड देन आपको वो रियलाइजेशन हुआ। सो जब तक आप प्ले देखने गए थे, द ओनली फोकस वाज टू बिकम एन इंजीनियर, इज इट? Yeah. सो अभी आपने ये करियर चूज करने के बाद एज अ पर्सन या एज अ मंजीरी, एज अ पर्सनालिटी, एज अ वुमेन, क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि पहले ये करियर चूज करने के पहले वाली मंजीरी और बाद वाली मंजीरी में क्या फर्क है? Wow. मैं बहुत छोटी थी जब ये डिसीजन लिया था, हम्म, तो तब समझ में नहीं आया। हम्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू अंडरस्टैंड सो मच अबाउट योर सेल्फ। जो आर्ट फॉर्म मैंने चुना है, हम्म, वो मुझे अपने बारे में या खुद से रूबरू करवाने में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। मुझे हर महीने में, मतलब ये सिर्फ तब की बात नहीं है, ये हम्म, आज तक की बात है, कि मुझे हर महीने में या हर स्पेस ऑफ टाइम, कुछ दिनों में, मुझे एक नई चीज अपने बारे में पता चलती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये करियर नहीं चूज करती तो शायद से मैं कभी अपने आप से उस तरीके से रूबरू नहीं हो पाती। और कई बार मुझे लगता है, दूसरों का तो छोड़ो, कई बार ऐसे होता है ना, हम कहते हैं प्यार अंधा होता है। आप अगर किसी को पसंद कर रहे हो तो आपको उसकी कुछ कोई चीजें दिखती ही नहीं है। दिखती नहीं है। मुझे लगता है आप खुद के लिए भी उतने ही अंधे होते हो कई बार। आपको कई बार लगता है कि आप इस तरीके से सोच रहे हो, जब तक आप उस मोड़ पे नहीं आते ना, तब तक आपको नहीं समझ आता है कि आपका सच में जिंदगी में स्टैंड क्या है। एग्जैक्टली। और एक्टिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपको ऐसे बहुत सारे मोड़ पे लेकर आता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रियल जिंदगी में वो मोड़ आते हैं, या फिर आप किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तब मोड़ आते हैं, और तब आप आपको खुद को क्वेश्चन करते हो कि सच में आप ऐसा सोचते हो। मतलब एज अ वुमन आई थिंक मैं बहुत अलग तरीके से ग्रो होती अगर मैंने एक्टिंग एज अ करियर नहीं लिया होता। मैंने बीट माई ओन बॉडी, बिकॉज एज एन एक्टर आपका शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है किस हर आर्ट फॉर्म में। जैसे कि सिंगर्स के पास उनकी वॉइस होती है एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक्टर के पास अपना शरीर है। तो उस शरीर को लेकर एक जो बचपन से शेम का एक टॉपिक होता है व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ वुमन, उस टॉपिक को लेकर मैंने इतना ज्यादा अपने आप से कहा जाए कि झूंझा है। फाइट किया है। फाइट, बिकॉज आपको लगता है आप लिबरल हो, आप मॉडर्न हो, आप बहुत ज्यादा फ्री हो, पर
कई सारी चीजें होती है जो जेनेटिकली आपके अंदर होती है, क्योंकि जनरेशन से आपको सिखाई गई होती Yeah, है। your looks, your skin color, your body is not something in your hands, या right? एग्जैक्टली और उस उन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है, ये How रियलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक आपको सच में यूज करनी है वो चीजें। right. यू वर सेइंग So समथिंग? true. Yeah, that's what I'm like, I mean, this is something which is like a gifted to या us, and whatever it is, however it is, you just have to nurture it, यस and how you look at it again is a very different perspective. How your surrounding is making you look at it, the conditioning is making you look at it, yeah, or उसके परे जाकर आप अपने आप को किस तरह देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस वेरी मच। मतलब अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग जेलिसी, हम्म. है ना? एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। वी केम टू अ पॉइंट जब उसने बोला मैं इतने सालों से आई एम फाइटिंग विद दिस वन फीलिंग ऑफ जेलसी, बिकॉज सब बोलते हैं जेलसी बहुत गलत है, गंदी बात है जेलसी फील होना। आई थिंक और इट्स बहुत नॉर्मल और बहुत नेचुरल प्योर है. है, एग्जैक्टली, प्योर है, नॉर्मल है, बहुत नेचुरल बेसिक है. है, बहुत प्रिमिटिव है। जैसे गुस्सा इतना प्रिमिटिव फीलिंग है, जेलसी भी बहुत बेसिक है। और Right. एंड फनीली मैंने जब ये करियर चूज किया तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि एक्ट्रेसेस से दूर रहना, ये बहुत आपका पैर खींचेंगी, बहुत कॉम्पिटिटिव होती है महिलाएं, उनसे दूर रहना। हम्म. बट श्रद्धा, सच में मैं बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, मेरी जिंदगी में, मेरे करियर में आज तक अगर कोई एज अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ सपोर्ट खड़ा रहा है तो वो औरतें ही हैं। How और वो nice. मेरी को एक्ट्रेसेस हैं How nice. जो शायद से मुझसे कॉम्पीट कर सकती थी। हम्म. बट द पॉइंट इज वी स्टैंड फॉर ईच अदर एज आर्टिस्ट मोर देन एनीथिंग। और मुझे लगता है आई एम जस्ट टेकिंग दैट लाइट अहेड ऑफ काइंडनेस इन अ वे। तो जेलसी फील ना होना तो झूठ है। मुझे ऐसा लगता है उस जेलसी के साथ आप करते क्या हो, That is more important. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक एनीथिंग एल्स, एनी अदर फीलिंग, आप अगर एंगर फील होना गलत नहीं है, उसके साथ आप करते क्या हो? आई थिंक जेलेसी को हमारे समाज में एक बहुत बड़ा गिल्ट अटैच कर दिया है कि Really? अगर आप Yes. जेलस हो तो आप बहुत बड़े बुरे इंसान हो. लाइक उसको एक्नॉलेज करना और उस Exactly. पे क्या एक्शन लेनी चाहिए या उसको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, ये किसी ने कभी नहीं सिखाया. कभी अगर नहीं इफ सिखाया। somebody इज फीलिंग जेलस अबाउट समथिंग, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी एक्ट में दिखाई देता है, बट उसको हम इतना गिल्टी महसूस करवाते हैं या इतना बुरा महसूस करवाते हैं कि आई थिंक वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता ही नहीं है कि दिस इज नॉर्मल टू बी जेलस ऑफ And you're समथिंग compromising हैपनिंग. your honesty and authenticity. राइट. ऐसा मुझे लगता है जब आप True. ये टॉपिक आप जैसे बोल रहे हो ना, टेबल पे ही नहीं आता, you're compromising. तो मुझे Yeah. ऐसा लगता है कि एज अ आर्टिस्ट वी शुड बी ओपन हार्टेड ऐसे डिस्कशंस के लिए। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ये डिस्कशंस जितने बढ़ेंगे उतनी आपकी और आपके साथ जो है उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी. आपका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा. जैसे मैं वीणा की बात करी, वीणा जामकर, राइट. हम ना बहुत हद तक हम सेम दिखते थे। लोगों को लगता था मैं वीणा की छोटी बहन हूँ। ओके. पर उस लड़की ने सालों तक मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। शी बिकेम द नॉट ओनली द इंस्पिरेशनल सोर्स इन माई लाइफ, पर वो ना कहीं भी किसी भी प्रीमियर में जाना हो वो मुझे लेके जाती थी। और मुझे तब नहीं समझ में आता, मुझे अब समझ में आता है जब लोग इसकी बात करें। मैं तब बहुत छोटी थी। जैसे मेरी बहुत अच्छी अच्छी दोस्त हैं जो जो मुझे इतना ज्यादा खुले दिल से, दे आर गिवर्स तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई बताए ना कि महिलाएं कॉम्पिटिटिव होती है तो मुझे ऐसा लगता है वो अपने खुद के साथ कॉम्पिटिटिव होती हैं एंड दे आर मोर ऑफ अ गिवर बिकॉज दे ग्रेशियस, they're very very gracious. You need to just open the door. Yeah, that's true. Yeah. Yeah, that's true. So जब आपने डिसीजन लिया कि यू वांट टू गेट इनटू एन एक्टिंग करियर, तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिला, आपकी सराउंडिंग, लाइक ये सब मैनेज हुआ द वे यू वांटेड, और देयर वाज अ स्ट्रगल एंड फाइट? Look, my father वो आर्ट डायरेक्टर थे फिल्म्स डिवीजन में। तो बचपन से ना हमें 10-10 रुपए मिलते थे। अगर फिल्म देखते देखते कोई सवाल पूछा जाए
बाबा से और हमने सही जवाब दे दिया। और सवाल क्या होते थे कि अच्छा ये इंडोर है या आउटडोर है, इस Oh. सीन के बाद बताओ क्या आएगा, क्योंकि इस सीन के फ्रेम में ना कोने में एक क्यू था जिसपे सेकंड सीन, आगे वाला सीन। और So तब all those technical questions, या right? या And और very deliberately thought of. वेरी डेलिबरेटली। तो हमने ना कभी इस करियर को ग्लैमर के तौर पे देखा ही नहीं। कई बार मुझे अभी प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं नहीं देख पाती क्योंकि मुझे आपको ऐसा एक्सरे दिखाया गया है, you know, हाँ, you मुझे just. बचपन से एक्सरे दिखा। मैं छोटी थी तो बाबा के ऑफिस में चली जाती थी सेट पे देखने के लिए शूटिंग होता कैसा है। तो कई बार वो जो होता है ना एक्टर्स का ऐसा मानना कि दे आर द दे आर द फेस ऑफ एवरीथिंग, Right, मुझे जेन्युइनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दे आर जस्ट द मास्क, right. बिकॉज देयर इज एन आर्मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू। असली मेहनत तो पीछे हो असली रही है. मेहनत बैकबोन तो वो लोग हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये अपब्रिंगिंग में ना बहुत इम्पोर्टेंट था वो होना। पर उसके साथ वो प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं ना इस चीज के। तो उसके साथ ये भी हुआ कि जब मैं बड़ी हुई तो ही वाज नॉट हैप्पी विद मी इवन imagining or even uttering That you want to that become an I want to actor. become an actor. तो वो बिल्कुल खुश नहीं थे और बहुत ज़्यादा रिबेल और एंड यू नो रिबेलियस नेचर ये हमारे खून में है शायद मेरे बाबा ने उनके बाबा से रिबेल किया Yeah, I can see it from even Yeah. Aditi talking Exactly, to right? I mean, we can't help it. Right. या तो आप ही की देन है बाबा. आप ही की देन है, हम क्या कर और सकते हैं क्या. तो मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने घर छोड़ दिया था जब मैं बहुत यंग थी अपने मास्टर्स करने के लिए, बिकॉज मेरा कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बहुत बीएमएम किया था मैंने। तो बाबा का ऐसा मानना था कि आफ्टर दैट ही वांटेड मी टू डू लाइक एमबीए एंड देन बिकॉज इट इज इन द सेम फील्ड। उन्होंने बोला कि आप हॉबी कर लो एक्टिंग की, आप करियर इसमें करना, हॉबी ले लेना एंड व्हाट यूर एक्चुअली जो चीज आपका ऑक्सीजन बन जाती है वो आपकी हॉबी नहीं हो सकती। Right. और मैंने कोशिश की, पर वो एक साल मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था जब मैंने ये कंसिडर किया कि ये हॉबी के तौर पे लिया जा सकता है। आई कुडंट ब्रीथ। मैं सेम इंसान ही नहीं बची। Right. तो मुझे उसके बाद लगा कि नहीं, आई हैव टू फॉलो माई पैशन। तो उसके लिए अगर घर छोड़ना पड़े तो मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैंने पेपर्स चुराए घर से हमारी एक प्रॉपर्टी है जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, तो मुझे ना मुंबई यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का कोर्स करना था और बाबा को चाहिए था एमबीए कर ले, मतलब एडवर्टाइजिंग सीखा तो मैंने ना वो पेपर्स चुराए घर से और वो जो हमारा फार्म हाउस था वो सबमिट किया और कहा मैं इतना दूर से आती हूँ। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में मुंबई में रहने वाले लोगों को थोड़ी ना देंगे हॉस्टल। Obviously. तो वो पेपर सबमिट की और मैं रोज जाती थी वार्डन के पास, कोई कैंसिलेशन हुआ, कोई कैंसिलेशन हुआ, प्लीज बताओ प्लीज बताओ। तो जब इतनी सारी वेट लिस्ट थी, मैंने इतनी बार उनको पका दिया था कि अपनी शक्ल दिखा दिखा के शी फाइनली कंसिडर्ड मी ओवर अ कैंसिलेशन। Wow. एंड बाय दैट टाइम आई वाज डूइंग अ प्ले, एक मराठी नाटक था जिसमें मिलते थे 350 रुपए Okay. हर शो के। Wow. तो मैंने सोचा चलो कल से कमाना शुरू हो जाएगा बिकॉज हमारी टेक रन चल रही थी, कल से शोज शुरू होने थे। और उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा तुम्हारा हॉस्टल का एडमिशन हो गया है। Oh, wow. तो मुझे लगा बस अब मैं कमाती हूँ मैं मैनेज कर लूंगी लूंगी। बट इट वाज वेरी टफ। I can 350 रुपए क्या होते I हैं? can imagine. तो तब तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होता था, समझ ही नहीं आता था, बस ऐसा लगा था कमाना मतलब ये काफी है। बट लकीली आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर लॉट ऑफ जर्नलिस्टिक वेबसाइट्स। तो वहां से जो पैसे आते थे, जो मेरे नाटक के शोज थे वहां से पैसे आते थे, ये सब कर करा के somehow I finished my masters. You just mentioned about writing. Yes. Please बताइए. I don't know. It started as a survival, really. Okay. Because I wanted to earn extra bucks, Okay. and then I realized, और मुझे ऐसा लगा कि I was learning documentary filmmaking, तो मुझे लगा fiction is not my forte. पर फिर जब मास्टर्स खत्म हो गया और मैं नाटकों में काम करने लग गई, तो अचानक से आई स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड समहाउ आई हैड अ को राइटर कॉल्ड राघव दत्त। तो उन्होंने
एक दो प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे पूछा, मैंने कहा यार मैंने कभी किया नहीं है बट आई विल ट्राई, एंड somehow those happen to be like really well made films. So I started writing for people. पर मैं कभी ये कहती नहीं थी कि मैं राइटर हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी खुद की कहानी कहने की कोशिश या हिम्मत दोनों नहीं की थी. तो मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट अ राइटर unless and until I have my own story. Thankfully, with Manjari Matching Center, after 2 years of this story haunting me, really, it finally happened to be that the story is out, and the way it is reaching people, I think now I can proudly say that I am a writer. And luckily I got to work on really beautiful stories. Or Baman Irani sir है actor, वो एक group चलाते हैं Spiral Bound. It's free for writers, and he teaches what he's learned from his teacher Alex, the guy who wrote Birdman and really good films like Birdman. और उन्होंने यूएस में जाके एलेक्स से जो भी सीखा वो इंडिया में आके हमें राइटर्स को सिखाते हैं, एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन जॉइन दैट ग्रुप, एंड इट्स सो फैसिनेटिंग दैट हाउ ही वांट्स टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. तो मुझे ऐसा लगता है बमन सर जैसे जो आर्टिस्ट है वो एक तरह का ना एक तरह का बार सेट कर रहे हैं मेरी जिंदगी में ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. तो राइटिंग के मामले में मुझे लगता है आई हैव मेट सम रियली काइंड सोल्स. या So let's talk about the Superboys of Maligaon. Yes, yes. How did this project came to you? Okay. Superboys was quite a surprise, really. मैंने ना मेरा शो है शहर लखोट, Amazon प्राइम पे है, तो उसका शूट जस्ट खत्म ही किया था. और मेरी यूएस की दोस्त आई थी वापस, ऑल दोज इंजीनियर फ्रेंड्स, एंड दे हैड कम एंड दे वर काइंड ऑफ आस्किंग मी कि ना हॉलीडे करते हैं, वी शुड गो ट्रैवल एंड जस्ट गर्ल्स ट्रिप. नहीं होता टिपिकल. तो हमने सोचा हम ना डाउन साउथ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और हमने सारी फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली, सब कुछ कर लिया. आई फिनिश्ड माई शूट, आई हैड अ रैप पार्टी विद शहर लखोट टीम, एंड द वेरी मॉर्निंग नेक्स्ट डे आई फ्लू, आई लैंडेड डाउन साउथ, और मुझे कॉल आया कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं और दे वांट टू टेस्ट यू फॉर दिस रोल. Wow. और मैंने सबसे पहले तो अपने दोस्तों की शक्लें देखी. I can imagine. And to my surprise, they were very, very happy for me. Yeah. And they knew I always wanted to do this and how much it matters to me. तो weekend था, तो उन्होंने बोला weekend पे आप prep कर लो. I took the very next flight back to Mumbai. I prepped over a day, और मेरी एक दोस्त है वेदिका. She's a movement theatre artist. तो audition थी मालेगांव की. If you have seen the film, you would know what I mean. एक गाने पे डांस करना था, and there was another scene, the audition scene in the wedding, my opening scene. Yes. That was the test. और मुझे लगा अचानक से एक दिन में मैं कैसे कर लूंगी, but thankfully this darling Vedika comes in my life. And she has fever, but still she makes sure that, you know, she actually choreographs me for that dance over a day. And then next day, Monday, I go and I audition with Nandini and Karan. And they said, we'll let you know. I said, okay, cool. और इतने सालों से जिस तरह की जर्नी रही है मेरी, मैंने एक चीज सीखी है, एक्टर का काम वहां पे खत्म होता है जहाँ पे आप ऑडिशन दे देते हो. इसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है. यू कांट keep the hopes high, you can't keep any thought in your head. If you need, you just distract yourself. तो मैंने तब मेरी जो मैनेजर थी उनको फोन किया, मैंने कहा ये हो गया है, looks like it was a good test but I don't know, we'll see. And then after a week they called me and they said Reema के साथ reading है. So I said, that's great, because Reema Kagdi has been one of my most favorite directors. मतलब मेरा एक शो था दहाड़, जो विजय वर्मा और सोनाक्षी सिन्हा है उसमें, and Gulshan Devaya, one of the really, really lovely web shows that India has ever had. Okay, so मैं दहाड़ में काम करना था मुझे, तो तब ना मेरा रोल बहुत छोटा था. And I had Betal just out, which was like a protagonist for Netflix original. और था दहाड़ Amazon Prime पे, और literally it was a very small role. Okay. तो मैंने कहा यार
it was a pull between two things Right. because Reema and Ruchika were directing it और मुझे रीमा से इतना प्यार है. Every single project of Reema I have like watched many number of times. तो मुझे ऐसा था यार उनके साथ काम करना है. And luckily I chose that, but because I did The Hard and Reema and I had like an instant spark of co-creation on the set of The Hard. It just happened to be that she remembered and she asked them to audition the Hard girls, and she specifically said she wanted to audition me. Oh. And they auditioned, and luckily after a week when they said Reema wants to read with you, I said great. 12 o'clock reading, and 10 o'clock I get a call that sorry Reema had to go somewhere. Oh. Something has changed, we'll let you know. After that again there was a gap of one whole week. And I was dying. I said, don't do this to me. I know, I can imagine. And then back and forth, because, for 6 months they were going for this casting. And the shoot was supposed to start in January. And we are talking about December first week now. तो सारे कैरेक्टर्स लॉक हो चुके थे, बस ये एक कैरेक्टर बचा था. बाकी था. And Reema was herself contemplating, क्योंकि उनको ऐसा था this is really important for me to have the right person for this, और अभी शूट शुरू होना है. But luckily, finally, that reading happened, and thanks to the entire crew who really backed me up. And yeah, that's how Maligaon happened, like a pure audition based with Nandini and Karan. So yeah, That's fantastic. yeah. मंजरी, आपने इतने डिफरेंट तरह के रोल्स किए हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है ये आपके लिए? लाइक कौन सा रोल आपको बहुत कंफर्टेबली आप कर सकते हो, और विच आर द रोल्स विच वर लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू एज अ एक हर एक का 40 होता है कि ओके दीज काइंड ऑफ सीन्स आई एम कंफर्टेबल विद, दीज काइंड ऑफ सीन्स आई एम लिटिल स्ट्रगलिंग और व्हाटएवर. I think, honestly, I feel the difficult one is yet to come. I mean, trying to be all modest, but I think there Super. is much to explore राइट. for me as an actor. And because I come from a background of theatre, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे जो यूटिलाइज होता है आपका क्राफ्ट एज एन एक्टर is quite it's, I won't say minimalistic, but it's quite concentrated version of what you're capable of. Because on stage, like for example, it's a 2-hour play. You are actually in the performance zone for those 2 hours. Right. On screen, a lot of times, throughout the day of the 12-hour shift, you're actually effectively performing for an hour or say 3 hours for that matter. Right. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि the most difficult part is yet to come as a role. Okay. I love picking up accents, so that becomes a kick in my life. Like Betal was a Chhattisgarhi accent, and Can you just wow, say a dialogue It's been in long. that accent? Wow, I have to really think. I don't know. The funny part is I pick up accents, Yeah. and if I don't use them anymore, they just wipe out, and then I have to go back, revise for a day or two, and then again, it comes in place. Because Gaslight had a completely different accent, which was like a Gujarati accent and a Gujarati tribal accent. Tribal, yeah. And The Hard had East Rajasthan, and Sheher Lakhot had West Rajasthan. Now, East and Western Rajasthan are both extremely different. So those two, and I shot those two projects in the same year. Okay. So for me, it was really fun to do that. But the most challenging thing, if you were to ask me, was the intimacy that The Hard required me to have. For me, as I was telling you, that toying around that idea of your body, and how much to show, and what does it mean to really have I mean, there was an era where women were wearing gloves because showing hands was vulgar. So vulgarity is such a subjective concept. Yeah, ना, yeah, मतलब बदलती and रहती everybody है. has a different parameter for it. और तो सारे आप- कल्चर्स में अलग-अलग अलग-अलग parameters है, हैं. exactly. तो आप कहाँ पे रुकोगे और कहाँ पे वो शेम किक इन करेगी, और वो जो लज्जा कॉन्सेप्ट है स्पेशली इन इंडियन कल्चर, Right. वो कहाँ खत्म होती है और कहाँ शुरू होती है, ये बहुत सब्जेक्टिव है. बहुत ये ज़्यादा. सारी चीजें बहुत ग्रे हैं.
तो मुझे दहाड़ के दौरान, थैंक्स टू अदिति अगेन, बिकॉज शी पुश्ड मी, शी रियली पुश्ड मी एंड शी सेड यू हैव टू डू दिस. तो मुझे लगता है दहाड़ के दौरान वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी. पर क्या है ना, रुचिका was directing it with रीमा, और रीमा का सेट is known to be a set of super women. आपने अगर वो super women film देखी होगी तो there is a female army, right? Yeah. Reema's set is that. Basically, it is full of female army. So, you know, it was so beautiful, and that became my first intimacy experience, really. And I had an actor like Vijay Verma who's extremely professional. He really made sure that I will not feel awkward about even a single thing, like even a single second. I did not feel I was taken for granted or I was taken for a ride. He was so professional and kind to me. Having Ruchika and Reema and, you know, all those women on the set, no instructions were given on the mic. Every time Reema or Ruchika want to communicate something, somebody would come and say it in my ears, any directions to be given. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है when it comes to something that you feel challenged about already. Right. तो as a team they helped me so much that challenge I could steer through. और मुझे याद है महीने भर मैंने अपने इतने सारे दोस्तों को फ़ोन करके पूछा था क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसा लगता है, उसके बाद कैसा लगता है, उसके पहले कैसा लगता है. मैंने सबको इतना ज़्यादा, मतलब मेरे लिए इतना नया था, और सब लोगों में एक कॉमन चीज़ थी. उन्होंने बोला इट्स ओनली द फर्स्ट टाइम, you do it once, after that you're going to be all right about it. And it literally happened that way, you know. And luckily, because I was on an Excel set and a Tiger Baby set, first experiences are very important. तो मुझे ऐसा लगता है कि now I know what is it like and what it should be like. Yeah. So I really got lucky. But that was the only challenging thing, I think. Otherwise, I think I'm very happy doing all the varied amount of roles and varied kind of roles. Fantastic. So, any funny moment or any profound moment, if you can remember during your shoot, any of the shoots, and it stayed with Funny you? moment, I was doing a Marathi film actually. Again, something got to do with intimacy. और मेरा शूट था एक दिन, और वो 90s के ज़माने की फिल्म थी. तो वो वीडियो पार्लर्स नहीं होते थे 90s में, ऐसे स्मॉल एरियाज में. Yes. तो हमारा सीन वीडियो पार्लर के अंदर था, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आर मीटिंग देयर, यू नो, इट्स अ डेट एंड स्टफ लाइक दैट. एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय क्रू डिसाइडेड टू लाइक प्ले अ प्रैंक. और उन्होंने कहा अरे अरे स्क्रिप्ट बदल दी. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी, और उन्होंने कहा अरे यहाँ पे ना चेंज है, यहाँ पे किस करना है इस मोमेंट पे. और मैं बहुत यंग थी. मैं बहुत वन ऑफ माय इनिशियल प्रोजेक्ट्स. क्या ये डिस्कशन तो नहीं हुआ था? तो बोला नहीं, चेंज किया. और मेरे को एक्टर्स इतने कमीने थे. उन्होंने कहा हाँ, हमने भी अभी जो सीक्वेंस किया ना उसमें भी ये चेंज था. तो सारे 2 कपल्स थे आई थिंक, या 3 कपल्स थे. उन्होंने बोला हाँ सारे कपल्स आर किसिंग ओनली. I said, what? And for me, it was such a big deal at that moment of time. I can imagine. I freaked out. And after that, for half an hour, I was on the phone discussing how am I going to do this. And then later, when I kept the phone, my first AD at that time, Vishal, came to call me, and he saw tears in my eyes, and the entire makeup is gone back. You must have regretted ये क्या कर दिया. And then they came to me and said, I don't know. They said, नहीं prank था, sorry, कुछ नहीं था. But you know, it's funny how you operate from so many pressures and so many things. Now when I look back, it's damn funny. But if I were not to choose to become an actor, शायद से मैं कभी ये चीज़ फेस ही नहीं करती कि मुझे इंटिमेसी या इन चीज़ों के बारे में लगता क्या है, Right. basically. So yeah, that's one of the funny things that had happened. Yes. So, Manjiri, how different is theater life than the film life? Like, or you have done TV as well? Yes. It's not very different really. When you're at work, you're at work. Yeah. मुझे याद है मेरा पहला जो नाटक था जिसमें 350 रुपए मिलते थे. 8 लड़कियां थी, 8 औरतें थी,
और उन 8 लड़कियों में से मैं एक लड़की थी और मेरा बहुत छोटा काम था, बट आई वाज ऑब्सेस्ड। तो मैं क्या करती थी, मेरा इतना छोटा काम था कि जब भी मुझे स्टेज पे आना होता था, वो छोड़ के मैं जब भी नहीं हूँ स्टेज पे, आई यूज्ड टू बी ग्लूड to the wings. And I think I must have done some 500 shows of that play because it was a Marathi commercial play, like a proper Marathi Zaubai Zorat. Okay. And I traveled with that. I traveled all across Maharashtra with that, you know. तो इतना beautiful experience था। मैं ना सारे 500 शोज में से 2 से 3 शोज जब मैं बीमार थी शायद से शो के दौरान, वो छोड़ के ऑल द शोज आई वाज ग्लूड इन द विंग्स। और मुझे रियलाइज हुआ कि द सेम फैसिनेशन आई फील ऑन द सेट्स व्हेन आई एम नॉट रियली परफॉर्मिंग, आई एम ऑलवेज ऑन सेट्स। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो ना सेट ना शादी का घर है जहाँ 1000 चीजें हो रही हैं, एंड आई फाइंड ब्यूटी इन दैट chaos. I find some beauty in that chaos. And I love being on the set. कभी पैकअप हो जाए तो मुझे लगता है अरे यार क्यों पैकअप हो गया। But yeah, That's true passion. yeah, I love it. I mean, I don't know. I can't help it. At times I feel शायद से कुछ और होता है यार जो इतना किकअप करता, लेकिन नहीं है, and I have to live up to it now. So yeah. So Manjiri, playing live is very intense. Playing? Live, as Yeah. in acting live, is very Yeah. intense, right? So the connect with audiences must be way deeper or different than how it is performing on the screen or on Yes. in front of Yes. cameras. Yes. So please tell us about that experience, like, what Manjiri prefers. Wow, what do I This or that. prefer? Wow. यार एक्टर तो अटेंशन का भूखा होता है, कहीं से भी मिल जाए। That's No, true. but I feel these are two different kind of joys. I don't know, I can live without one another. Okay. जैसे थिएटर में इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, Hmm. स्क्रीन पे इट्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन, Right. पर वो जिंदगी भर के लिए छप गया। Right. The theater gives you instant gratification, but that also is वो छप गया आपके दिल में। Hmm. स्क्रीन वाला भी दिल में ही छपता है, लेकिन वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। Right. तो उसका जो प्रोसेसिंग है ना इस चीज का, वो बहुत डिफरेंट है एक्चुअली, और ये मुझे अब पता चला है। और जैसे पिछले 5 सालों से मैंने थिएटर नहीं किया, तो माई बीइंग वाज क्रेविंग फॉर इट। लकीली टचवुड अब तक वैसा फेज नहीं आया दैट आई हैवंट डन स्क्रीन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, Hmm. बट आई एम गेसिंग दैट आई विल मिस दैट इक्वली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और स्टेज पे तो मतलब स्क्रीन पे ऐसा भी होता है कि कई बार मतलब मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं, जैसे नवदीप सिंह जी जो है डायरेक्टर शहर लखोट के, ही इज वन ऑफ द मैवरिक्स, लाइक अ रियली सीनियर डायरेक्टर। Hmm. तो उनके लिए जैसे परफॉर्म करते समय ना आपको समझ में आता है ही इज एक्चुअली लुकिंग एट यू एज एन ऑडियंस, Right. so you're actually performing for the audience live in front of you. Exactly. So the connect must be different. Like you said, like there were so many women who came up to you and said that, we have the similar story or something. Yeah. So, sharing that immediately and connecting with their emotions must be again a different thrill, right? Different thrill altogether. Different thrill. But जैसे मैंने कहा ना, सेट पे बहुत लोग होते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि वो मेरी ऑडियंस है। दे आर माई द लाइट मैन हु इज वर्किंग एंड एडजस्टिंग द लाइट फॉर मी, माई स्पॉट बॉयज, everybody, production guys, they all are like my audience at that moment of Right, time. right. तो मेरे लिए तो स्टेज परफॉर्मेंस ही है वो। if you really look at it, I mean, of course technicalities change for screen and theater, but I feel I'm in love with both these mediums equally actually. Yeah. Manjiri, do you think जो stories from small towns होते हैं जैसे कि Superboys Superboys, do they get the appreciation or the love that they really deserve? या you feel कि जो stories जो बहुत glamorous होती है and full of other things like which are not true, but they get the attention more, I or think how? it's all about the marketing part of it. I think our system is flawed to market. अगर मेरिट के तौर पे देखा जाए तो जो ग्लैमरस स्टोरीज है उनमें भी कुछ बुरा नहीं है,
बट जिस तरीके से उन्हें मार्केट किया जाता है उसी तरीके से अगर इन स्टोरीज को मार्केट किया जाए तो मुझे लगता है they will receive the love. Like speaking of Superboys of Malegaon, it is most reviewed film of 2025 because it's really something जो लोगों के दिल को छू गई है वो कहानी. और जब फिल्म थिएटर में थी तो ऐसा लग रहा था 1-2 हफ्ते में निकल जाएगी, पर लोगों को पसंद आई इसलिए वो तकरीबन 2 महीने तक मुंबई में चलता रहा उसका शो. आपने सोचा था ये इतनी बिल्कुल चलेगी नहीं या सोचा इतनी था, पॉपुलैरिटी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने. और इट इज सो फनी कि मैंने ना बहुत सारे शोज देखे बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड फॉर सीइंग द ऑडियंस रिएक्शन टू That सर्टेन must be a थिंग्स. thrill again. इट इज अ थ्रिल. तो मैंने ना जियो वर्ल्ड ड्राइव में जाके शो अटेंड किए. मैंने यहाँ पे बैंड्रा में कौन सा गेटी गैलेक्सी, गेटी में जाके चेक किया. तो ना गेटी की ऑडियंस और से जियो वर्ल्ड ड्राइव की ऑडियंस एक्सट्रीमली पोल्स अपार्ट है. Right. बट अगर कोई सिनेमा इन दोनों क्लासेस को केटर कर रहा है और दोनों क्लासेस उसी तरीके से अपने अपने तरीके से लेकिन उसी स्केल में किसी स्टोरी को एंजॉय कर रही है, सो वो स्टोरी डिजर्व्स द अमाउंट ऑफ लव एंड इट इज गेटिंग दैट लव. इट्स जस्ट दैट if you're ready to invest in that, if you're ready to encourage that. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ध्रुव राठी जो है मैं उनका चैनल फॉलो करती हूँ. आई रियली लाइक हिज एनालिसिस. ही वाज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एंड वेयर आवर इंडस्ट्री हैज कम टू, एंड really saving independent cinema, saving the stories of small towns, saving the small scale stories is the only way probably our industry can survive. And also reducing the ticket prices for the films is the only way this entire infrastructure can be saved. There is no other way. South में government ने rule लगाया है कि इसके ऊपर ticket rates नहीं होंगे. We need those kind of regulations. We need people backing things up. We need the platforms, the OTT platforms, to have executives and to have people who are taking decisions. I always say that all the MBAs, to all due respect, they're taking decisions of the stories and they're taking decisions of which film is to be promoted, need to make one film before they take those chairs. Right. Just for them to know what does it take to make a film, what does it take to really want to tell a story and translate it on a medium like screen. So I think that one experience will change their perspective, hopefully, and change their decisions per se. Right. So it'll be a more inclusive as a system. और तब जाके मालेगांव जैसी जो कहानियां हैं उनको और ज्यादा जस्टिस मिलेगा. आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स. Amazon प्राइम पे जब से फिल्म आई है इतने ब्यूटिफुली लोगों ने इतना ज्यादा उससे रिलेट किया है, हमें इतना प्यार दिया है सच में. Right. It's beautiful, but I think it deserved way more. Yes, yes. And many stories like that. Of course. Many Many stories. Right. Do you think OTT platform has changed the way you look at acting या जिस तरह की roles की demand आई है? OTT platform का क्या role है? I feel OTT, when it came in first, created a lot of freedom, be it about censorship or be it about the amount of projects that OTT was capable of pushing, of giving platform to. But it didn't remain there. OTT created workspace for a lot of actors. यू डिन आपको एक टिपिकल एक्टर पर्सनालिटी होने की ज़रूरत नहीं थी. बहुत ऐसी कहानियाँ जिसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको सराहा गया. तो OTT ऑल्सो हैड इट्स गोल्डन पीरियड मुझे ऐसा लगता है. और उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे उनका बी यू बिकेम समथिंग टू सेलिब्रेट. जस्ट बिकॉज आप उस हीरो और हीरोइन फॉर्मेट में नहीं हो, आप एक्टर नहीं हो, इस ग्रिड को तोड़ दिया क्योंकि उतनी सारी कहानियां कहने का मौका मिला दोस्तों को, लोगों को. बट जब से ब्लॉकबस्टर फिल्में और जब से डिसीजंस चेंज होने लगे OTT के, it actually became exactly similar to what was happening in mainstream.
तो मुझे ऐसा लगता है इट्स हाई टाइम कि हम ओटीटी या इस पूरे सिस्टम को फिर से एक बार देखें, फिर से उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको इंक्लूसिव कैसे किया जाए, इसकी तरफ देखें, और ओटीटी का नॉट ओनली सेंसरशिप बट ओटीटी के डिसीजंस को एक बार फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है। जरूरत है। जी। Right, right. Manjiri, what kind of roles, like, what is your dream role? Or what kind of roles would you like to do in future? Wow, I want to do any kind of and every kind of role in the future. Mm, I but- want to do as varied amount of roles as I can. Um, I think we make very few films or projects which are driven by women, and I have this obsession about superpowers, and I think we don't have Yeah. superpower. I think बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी या है ही नहीं के बराबर ऐसा ही है. कौन सा सुपर पावर कैरेक्टर है which is female based? I don't want to call it a superhero film because it's a super heroine film I'm talking about. Right, right. But I think we haven't explored that at all. Absolutely. And I think we have such capable actresses, and I would love to pick on something like that, which will have its own superpower genre, and it बहुत मजेदार हो सकता है, मुझे लगता है बहुत Yes, कुछ करने जैसा है, yes, that's true and interesting और idea हमने and एक्सप्लोर नहीं concept. किया अभी तक. Yes, that's true. सो मंजरी, अभी बताइए कि अगर आप एक्टिंग नहीं कर रही होती तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाती या और अपना करियर करती, या कुछ और भी आपके दिल में था? वाओ, हाँ वही करती शायद. आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, तो या तो पायलट बन जाती, बट कमर्शियल पायलट तो नहीं बनती आई थिंक, Okay. because the routines are not my thing, I think. To be confined in a job per se. Either I would have been a sports person, या फिर because मुझे लगता है sports is also kind of an art. Like, और मुझे लगता है art also requires a sports kind of discipline and passion. Right. So both these things are very And both are very intense. very intense, and it takes a lot to stand there of wherever that you are. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजें तो मैं करती ही करती. So- I don't think so I would have survived as an aeronautical engineer. But yeah. So when you're completely alone at home, you're not doing, like, you're not, in fact, the way you said, you're working when you're completely alone. Yeah. What's your favorite thing to do? How do you spend your time? Damn, it's gonna sound very nerdy, but I love reading plays. मुझे मजा आता है बहुत Okay. plays पढ़ने में. I don't think so. I'm as much as a reader as much as I would like to, because there's never enough. But plays पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, and if I'm not doing that, then I love doing something with my hands. Something which is like, like an intricate thing, kuch na kuch, Like crochet or something like that? Or not crochet, I've cooking? never done it, but I love making gel candles and, doing something intricate. I don't know, I feel obsessed about those things. And they also rewind me, and I feel, मेरी एक टीचर थी, मैंने कथक सीखना शुरू किया था बहुत सालों पहले, तो वो मुझे आशाताई जोगलेकर, वो मुझे पढ़ाती थी कथक. तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आर्ट फॉर्म एक्चुअली फ्लोज थ्रू यू. आपको किसी एक आर्ट फॉर्म पे फोकस करना है, बट दैट किक्स इन दैट गियर ऑफ आर्ट फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स. तो उन्हें विश्वास था कि हर आदमी आर्टिस्ट है, एंड शी ऑपरेटेड फ्रॉम दैट बिलीफ. मेरे एक टीचर थे एक्टिंग के, उनको किसी ने पूछा था, सर कौन सा एक्टिंग वर्कशॉप करना चाहिए आपको लगता है? तो उन्होंने कहा था कोई एक्टिंग वर्कशॉप मत करो. तो वो जो स्टूडेंट था जो पूछ रहा था, वो कंफ्यूज हो गया. उसने बोला मतलब? तो उसने एक्टिंग वर्कशॉप करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप जाओ एक स्कल्प्टर के पास, वो वर्कशॉप करो. वो बेद से जो टोकरी बनाते हैं ना, उनके पास जाओ. एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग लाइफ. And if you can observe life and the breath of that life,
you're an actor, you don't need an acting workshop, which is very, very true. True. Yeah. Yeah. Like my acting work is based out of a lot of, like केरला में मेरे टीचर है वेणु जी, तो वो नाट्य शास्त्र पढ़ाते हैं, तो नवरस साधना is one of the courses that he takes. When I go there, Hmm. what I learn as an acting technique is very little, Hmm. but what you observe along with that is way more. Right. तो मुझे वो चीज़ बहुत fascinating लगती है, Hmm. to look at acting as a part of your life. Right. So yeah. Fantastic. So, Manjari, let's talk about your upcoming project. What is it? Oh yes, I'm really excited. Dhadak 2 is coming up. Again, the film is a fascinating story, a small town story based on caste suppression. And Shazia Iqbal is the director, and it's a beautiful film. It was stuck with censor board for the longest time. Luckily, we got a release date, which is 1st August. Super. और हम सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत बहुत महीनों से इंतजार चल रहा है इस फिल्म का. Sure. So we are very excited, and finally it is releasing. So it's Yeah. going to be fun. All the very best, and we are also looking forward for that film. Thank you. Thank you so much. Yeah. So, it was wonderful, wonderful having you here, Manjari. you. Be You with Shraddha S. And we thoroughly enjoyed the conversation. And you were really, truly were being yourself. That was Thank the you. whole idea and the concept of this podcast. Yeah. Like, just be you. You know, I love the concept. I Yeah, love the infinity. Thank you. So I think being you is infinity. Like if you are yourself, then there are no limitations, there are no boundaries, right? You're just See, yourself. true that. So Yes, that yes, was the yes. whole idea about it. Thank you for having me, Shraddha. Thank you. Really, really. Thank you so thankful. much. हाय, अगर आपको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज़ बी यू विद श्रद्धा इस चैनल को फॉलो कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड यस, वॉच द होल वीडियो एंड टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक. थैंक यू.